Good morning students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Thak from Saraswati Group of Education. Children, today we are meeting for our fifth session of chapter number 3 named Numbers Up to Thousands. Yes. Now children, before starting the session, let us revise what we learned in our previous session. Do you remember what we learned in our previous session? Any idea? Yes, we learned comparison of 3-digit numbers. How you can compare 3-digit numbers and how you can recognize which number is greater and which number is smaller. Right. Now children, in today's session, we are going to learn ordering of numbers. You can see on the board, ordering of numbers. And in that, there are two sub things. One is greatest among all numbers and the other is smallest among all numbers. Right. Now what is ordering of numbers? Ordering of number का meaning क्या है? Ordering means आप जो numbers order में लिखते हैं. Right. अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप ऑर्डर करें कोई नंबर तो यू शुड बी नोइंग कि 3-digit नंबर अगर आप लेते हैं और 2-digit नंबर लेते हैं तो ऑर्डर में हमेशा 3-digit नंबर ग्रेटर होगा. Why? बिकॉज उसमें 3 digits हैं और 2-digit नंबर में सिर्फ 2 digit है. सो ऑर्डरिंग ऑफ नंबर मीन्स द नंबर्स दैट हैज मोर नंबर ऑफ 3-digit नंबर compared to any other number. Right? For example, I am writing on the board. Suppose I take an example 144 and the other number is 28. Now, in both the numbers, according to the order, which number will come first? Yes, these are 3-digit numbers and this is 2-digit number. So, this will be first. You already know the ordinal and cardinal numbers and this number will be second according to the order because इसमें 3-digit number है ये बड़ा है और इसमें 2-digit number है. Right. Similarly, if I take an example 1000, this is 1000, right? And the other number I take is 10. How I will write? According to the order. This will be first because इसमें ones, tens, 100 और 1000 है और इसमें क्या है? Only ones and tens. तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं? तो ज्यादा डिजिट्स किसमें है? This. So this is greater and this is smaller. समझ में आया बच्चों? Right. And based on this, today we are going to do our exercise number 3.6. Okay. This is something common that I explained about ordering of numbers. अब इसी के basis पर we will study greatest among the numbers and smallest among the numbers. Okay, so let me take an example. I am going to take an example from the book itself. You can go through your books. We have to first of all find the greatest number. अब तक आप लोग greatest number जो कर रहे थे वो आपको 2 नंबर थे उसमें से आप फाइंड कर रहे थे कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है. बट अब अगर आपको 2 digit या 3-digit नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर्स मिल रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है? अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, ग्रेटेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा है, स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा है. ओके, सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल फ्रॉम द बुक. फाइंड द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग 34, 9 एंड 120. सो आई एम राइटिंग ग्रेटेस्ट आपको फाइंड करना है. आई एम राइटिंग ग्रेटेस्ट एंड द क्वेश्चन इज 34, 9 and 120. Now this is very easy to be understood. इसमें से greatest कौन सा हुआ? According to the ordering कौन सा सबसे बड़ा हुआ? 2-digit number. This is 1-digit number and this is 3-digit number.
तो कौन सा बड़ा हुआ? ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर. आई एम राइटिंग हियर द नंबर्स. 100 tens ones, 100 tens ones and 100 tens and ones. 34 है, वो क्या हुआ? 2 डिजिट नंबर. सो दिस इज 34. यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. 9 है, वो 1 डिजिट नंबर. सो आई विल राइट हियर 9. And 120 is 3 digit number. So I will write 120. अब इस पे से आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा सबसे बड़ा है. यहाँ पे 100 की प्लेस पे नहीं है तो ये छोटा हुआ. यहाँ पे 100 और टेंस की प्लेस पे नहीं है तो ये तो इससे भी छोटा हुआ, राइट. और यहाँ पे 100 टेंस एंड वंस तीनों की जगह पे है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा ये हुआ, राइट. सो व्हाट कैन वी से? So we can say that 120 is greatest. 120. अब greater than की साइन कौन सी हुई? It is this. और less than की साइन is this. Remember these signs, okay? Don't forget. Okay. So what we can say? 120 is greater than 34. ये नंबर इससे बड़ा है, राइट. और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि 120 इज ग्रेटर देन 9 क्योंकि ये तो 1 डिजिट नंबर है. सी कह सकते हैं, राइट. सो व्हाट वी कैन से? 120 इज ग्रेटर देन 34 एंड 120 इज ग्रेटर देन 9. बोथ द वेज आर राइट एंड बोथ द थिंग्स आर टू बी रिटन, राइट. पर इसमें हमको सिर्फ ग्रेटेस्ट पूछा है तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते और 34 इज लेस देन 120, ये नहीं लिखना क्योंकि इसमें जो पूछा है उसी का आंसर देना है. सिर्फ ग्रेटेस्ट पूछा है सो वी विल राइट ओनली ग्रेटेस्ट, राइट. नाउ सिमिलरली ये हमने देखा अभी ग्रेटेस्ट नंबर का, राइट. अब ऐसे ही हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर का देखेंगे. So let me take one more example for the smallest. Remember children, क्वेश्चन में जो पूछा गया हो उस पर फोकस देना, बिना रीड किए. डोंट राइट द आंसर्स. डोंट थिंक ये ग्रेटेस्ट का ही पूछा होगा. पहले आप क्वेश्चंस देखना व्हाट इज आस्क्ड एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर. सो वन मोर एग्जांपल फ्रॉम द बुक. द सेम नंबर. फाइंड द स्मॉलेस्ट अमोंग 34 सेम डिजिट्स 9 and 120. सेम वही के वही डिजिट्स आए. इसी में से हमने ग्रेटेस्ट फाइंड किया था, अब इसी में से हमको स्मॉलेस्ट फाइंड करना है. तो अब पहले हम लोग अरेंज कर दे अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 34 लिख देती हूँ. 9 जो है 9 की जगह पे और 120 तो यहाँ पे 120. अब अगर हमको स्मॉलेस्ट पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले वंस की ओर देखेंगे. जिसमें सिर्फ वंस है वो नंबर सबसे छोटा होगा, राइट. तो यहाँ पे सिर्फ 1 किस में है? दिस नंबर. और किसी में देखो ओनली वंस है? नहीं है. इसमें सिर्फ वंस है, फिर इसमें वंस और टेंस है, इसमें वंस टेंस और 100 है. इसका मतलब दिस नंबर इज द स्मॉलेस्ट. सो व्हाट वी कैन से? 9 is the smallest among all, right. smallest among all लिखना जरूरी है. सिर्फ 9 smallest ऐसा नहीं लिख सकते, इन तीनों में से पूछा है तो what we will say? 9 is the smallest among all numbers. Got it? Now again we have to write the statement in this form. So how we will write? 9 is greater than कि less than? क्या पूछा है क्वेश्चन में? smallest. So 9 is smallest than. पहले 2 डिजिट नंबर का लिखेंगे, इससे छोटा है तो 9 is less than 34 and 9 is even less than 120. Got it? जब ग्रेटर पूछा गया था तो 120 वाला जो नंबर था वो सबसे ग्रेटर था. जब स्मॉलेस्ट पूछा गया है तो जो 9 है जिसमें सिर्फ वंस है वो सबसे छोटा है. Got it? So this is the way how you deal with ordering of numbers like greatest among all and smallest among all. Now children,
ये तो हमने 1 डिजिट नंबर लिया, 2 डिजिट नंबर लिया, 3 डिजिट नंबर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो एक 3 डिजिट नंबर है, एक 1 डिजिट नंबर है और एक 2 डिजिट नंबर है। बट अगर आपके पास तीनों के तीनों नंबर 3 डिजिट वाले हो और उसमें से आपको फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट फाइंड करो या फिर स्मॉलेस्ट फाइंड करो, सो हाउ यू विल डू। ये तो इजी था कि 1 डिजिट नंबर है तो दैट इज स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट नंबर है तो उससे थोड़ा बड़ा और 3 डिजिट नंबर है तो उससे भी बड़ा। इतना तो हमको वैसे भी आ रहा था, तो दिस वाज इजी। बट अगर 3 के 3 डिजिट नंबर्स जो हमारे पास है वो तीनों के तीनों डिजिट्स 3 डिजिट नंबर वाले हो, तीनों के तीनों नंबर्स, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। फॉर दैट आई विल इरेज द बोर्ड and we will do the example from the book itself. Now let me first erase. Okay, fine. Now find the greatest. अब मैं 3 डिजिट नंबर्स की बात कर रही हूँ। ओके, उसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट राइट। कौन से नंबर है ग्रेटेस्ट में? द एग्जाम्पल्स आर 234, then it is 400 and the last digit is 190. ओके, अब आप देख रहे हो मेरे को यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, बट स्टिल आई एम राइटिंग सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया। ये है वो 234, फिर ये वाला नंबर है 100 times 1s, इट इज 400 एंड द थर्ड नंबर इज 100 times 1s 190. गॉट इट? अब चिल्ड्रन इसमें से हमको कंपेयर करना है और लिखना है कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, राइट? विच इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग दीज। नाउ वी लर्न इन आवर लास्ट लेक्चर कि ग्रेटेस्ट कंपैरिजन कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर द हंड्रेड्स प्लेस। इफ इट इज द सम नंबर सेम देन वी विल गो फॉर टेंस प्लेस। अगर टेंस के प्लेस पर भी सेम नंबर मिलता है तो हम लोग वी आर गोइंग फॉर वंस प्लेस, राइट? तो सेम लॉजिक इसी में भी अप्लाई करना है। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कंपेयर करेंगे? प्लेस एट 100। तो यहाँ पे 100 की प्लेस पर क्या है? 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। तो इन तीनों में 100 की प्लेस पे कौन सा सबसे बड़ा है? यस, 2 बड़ा है? नो। 1 बड़ा है? नो। तो 4। सो दिस नंबर इज ग्रेटेस्ट, राइट? बिकॉज 100 की जगह पे वही सबसे बड़ा है। सो व्हाट वी कैन से? सो 400 is the greatest number, right? Among all लिखना है, मैं नहीं लिख रही, but you have to write the same. Okay. Whenever you are doing the sums in your books right now, this is just an example. So अभी कुछ आपको बुक में नहीं लिखना, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब भी आप बुक में ऐसा कुछ लिखेंगे and you have to mention it properly. Got it? So 400 is the greatest number. अब सेम ये वाली प्रोसीजर आएगा, ग्रेटेस्ट पूछा है तो सो व्हाट वी कैन से? 400 इज ग्रेटर देन, पहले ये वाला नंबर देखते हैं, 234. सो वी विल राइट 234 एंड अगेन 400 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है? और यस, 190. वेरी गुड चिल्ड्रन, राइट? सो ये हमने क्या किया? इन तीनों 3 डिजिट नंबर में से हमने सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया और उसको डिफाइन किया कि ये नंबर दूसरे 2 नंबर से बड़ा है, राइट? अब सेम यही चीज स्मॉलेस्ट नंबर के लिए करनी है, तो हम लोग कैसे करेंगे? लेट अस डू। ये मैं इरेज कर देती हूँ, रेस्ट ऑफ द थिंग्स बी लेट इट इज, जस्ट ग्रेटेस्ट की जगह पे मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट कर दूंगी, ठीक है? ग्रेटेस्ट पढ़ा तो अब स्मॉलेस्ट भी पढ़ना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर ये रोएगा, राइट? सो
Now again, smallest among all these number, which is it? How we can identify? बोलो 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 बोलो, कौन सा है सबसे छोटा? सेम थिंग, पहले हम लोग 100 से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे. हंड्रेड्स में जो सबसे छोटा डिजिट है, यहाँ पे हंड्रेड्स में 2 है, यहाँ पे हंड्रेड्स में 4 है, और यहाँ पे हंड्रेड्स में 1 है. सो विच इज द स्मॉलेस्ट वन? यस, it is 1. So what we will say? 190 is the, यहाँ पे ग्रेटेस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट. आपको लगा कि दीदी को पता नहीं है, दीदी को पता था, बट आई डिडंट इरेज बिकॉज आई वांटेड टू चेक योर नॉलेज. सो 190 is the smallest number, right? क्योंकि हंड्रेड्स में से हमको पता चल गया कि कौन सा छोटा है. तो अब हम क्या लिखेंगे? जो छोटा है उसको आगे रखेंगे. 190 छोटे की साइन क्या होती है? लेस देन. 190 इज लेस देन किससे छोटा है? ये वाले डिजिट से है. यस. सो हम क्या लिखेंगे? 234. एंड अगेन 190 इज लेस देन विच अदर डिजिट? Yes, 400, right? So you can see it's so easy and so simple. कितना easy है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन कैसे करना है, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया. अगर आपको वो पता होगा तो ये तो उसके सामने बिल्कुल easy है. Got it? So this is the way how you compare the greatest and the smallest number. Now children, open your books. Page number 133, we are going to solve exercise 3.6 based on greatest and smallest numbers. Children, now open page number 133 from the textbook. I have written some of the sums on the board, and based on those sums, you will have to do the rest of the sums as homework. Okay, so first let's begin with question number 1. In exercise 3.6. Now what is the question about? Question is about fill in the box using greater than sign, less than sign or equals to sign. Right? आपको already पता है greater than, less than and equals to. We just have to write the appropriate sign. So the first is A 425 dash 425. अब ये इक्वल हुआ, ग्रेटर देन हुआ कि लेस देन हुआ? बोथ द डिजिट्स आर सेम एंड बोथ द नंबर्स आर सेम. सो व्हाट वी कैन से? इट इज इक्वल्स टू, राइट? क्योंकि 100 टेंस और वंस पे सेम डिजिट्स हैं. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. 466 dash 366. How we will know? We'll start the comparison from hundreds place. So first here at hundreds place 4 is there, and here at 100 place 3 is there. So which is greater? 4. So what we can say? 466 is greater than 366, right? क्योंकि पहला डिजिट ही ग्रेटर हुआ तो वही डिजिट बड़ा होगा, right? Moving on to the third one. C 488 dash 489. Now let's compare. हंड्रेड्स की प्लेस पे दोनों जगह 4 है तो वो तो पता नहीं चलेगा. सो वी विल मूव टू टेंस प्लेस कंपैरिजन. टेंस पे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, दोनों जगह सेम. फिर और आगे वंस की प्लेस पे जाएंगे. वंस की प्लेस पर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है. इसका मतलब 8 9 से छोटा हुआ. इट इज लेस देन 9. सो व्हाट वी कैन से? 488 इज लेस देन 489. Right? Got it? So this is the way you have to do the rest of the sums in question number 1 as an homework. Now
मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप बुक में देखोगे क्वेश्चन पूछा गया है राइट द नंबर्स एंड द नंबर नेम्स। आपके पास ऑलरेडी बुक में ब्लॉक्स ड्रॉ किए गए हैं। जो रेड कलर से जो ग्रिड ड्रॉ की गई है दैट इज फॉर हंड्रेड्स, ग्रीन कलर से जो ग्रिड ड्रॉ की गई है दैट इज फॉर टेंस, एंड येलो में जो ब्लॉक्स हैं दैट इज फॉर वंस। आप लोग एबेकस में कर ही रहे हो, सो यू मस्ट बी नोइंग दीज थिंग्स, राइट। तो मैं एक दो सम्स बोर्ड पर कर रही हूँ, यू कैन चेक इट आउट। ओके, ए जो बुक में है दैट इज ऑलरेडी डन फॉर यू विच इज 126, सो आई एम नॉट डूइंग द सेम, आई विल स्टार्ट फ्रॉम बी। सो बी में क्वेश्चन क्या है, देर इज अ ग्रिड ऑफ 100, तो मैंने यहाँ पे 100 एक ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे एक स्क्वायर किया है, ग्रिड की है, और उसके अंदर 100 लिखा है बिकॉज आई हैव नॉट ड्रॉन ऑल द लाइन्स, राइट। और फिर टेंस की प्लेस पर आपको 1, 2, 3 और 4 आपको ग्रीन लाइन्स दिखेंगी, वर्टिकल लाइन्स, यू ऑलरेडी नो, सो दोज आर टेंस। सो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द आंसर, दिस इज 100 एंड दीज आर 1, 2, 3, 4, 40, ये क्या हुए इतने 40 और ये 100, so what will be the answer? I am doing rough work over here, you can check it out. 100 plus 40 is equals to 140, right? So what you will write, 140। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो वंस की जगह पे कुछ भी नहीं दिया, so we will not count ones। And the same thing 140 you have to write in words. You already know how to write in words, so I am not writing it in words, right? Now moving on to question number C। उसमें आपको एक ग्रिड 100 की दी गई है क्वेश्चन में, फिर ग्रीन में टेंस है और वंस येलो में है, राइट। सो लेट अस काउंट हाउ मेनी 100, हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही 100 है, सो 100 प्लस how many tens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tens means it is 80। ये सारे मिला के क्या हुए 80, राइट। और ये कितने हैं वंस, लूज वंस कितने हैं 1, 2 and 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, we will total 100 plus 80 plus 3। So I am writing here again as a rough work, 100 plus 80 plus 3. You already know vertical addition, right? So 0 add 0 is 0, plus 3 is 3, again 0 add 8 is 8, and 1 carried down. So what will be the answer, 183। So what I will write here, 1, 8 and 3। How will you write it the same in the words, 183। Okay, so this is question number 1 and 2 which you are already familiar with। Now question number 3 and question number 4 are the questions that we have learned today। So based on that we are going to solve these। So moving on to question number 3, the question asked is circle the greatest। Again remember क्या पूछा गया है, greatest। ओके, सो greatest मतलब बड़ा, तो कौन सी साइन आएगी, ग्रेटर देन की, ये याद रखने का बड़ा में, ओके। और हमको क्या करना है, हमको लिखना नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वी जस्ट हैव टू सर्कल, जो सबसे बड़ा है उसको सिर्फ सर्कल करना है, ओके। So first of all A 201, 101 and 401, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 100 से स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन, ओके। तो यहाँ पे 100 पे 2 है, यहाँ पे 100 की प्लेस पर 1 है, और यहाँ पे 100 की प्लेस पर 4 है। तो इन तीनों में से 100 की प्लेस पर कौन सा बड़ा हुआ, यस 4। सो ऑटोमेटिकली कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट कहलाएगा, 401। तो आप क्या करोगे, इस नंबर को सर्कल या स्क्वायर कर सकते हो और
circle. Got it? Moving on to the next question. B is, first number is 500, second number is 15 and third number is 9. This is very easy क्योंकि यहाँ पे एक नंबर 3 डिजिट है, एक नंबर 2 डिजिट है और एक नंबर 1 डिजिट है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे हमने आज सीखा कि ऑर्डरिंग ऑफ नंबर मीन्स जो नंबर जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स है वो सबसे बड़ा नंबर हुआ। तो यहाँ पे किसमें सबसे ज्यादा डिजिट नंबर है? 500 में, क्योंकि इसमें 100, 10s, 1s तीनों है। इसमें सिर्फ 10s और 1s है और इसमें सिर्फ 1s है, तो इसका मतलब 500 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, यू हैव टू डू इट विथ मी। सिर्फ देखना नहीं है, बुक में साथ में करते जाओ, बिकॉज आई विल डू ओनली फ्यू सम्स, रेस्ट यू हैव टू डू एज होमवर्क। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है? 424, then 484 and 414। अब पहले 100 की प्लेस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। सो हम लोग जज नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? टेंस की प्लेस से हम लोग शुरू करेंगे। सो टेंस पे जिसका बड़ा होगा वो विन करेगा, राइट? यहाँ पे टेंस की प्लेस पर 2 है, यहाँ पे टेंस की प्लेस पर 8 है और यहाँ पे टेंस की प्लेस पर 1 है। तो इन तीनों में से टेंस की प्लेस पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला? नो, ये? नो, तो ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 था। सो व्हाट वी कैन से कि ये नंबर सबसे बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे टेंस की प्लेस पर वैल्यू नंबर की ज्यादा बड़ी थी, राइट? सो दिस इज द वे यू विल राइट, और सो यू विल सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर in question number 3, right? Now moving on to the question number 4. Circle the smallest. इस जो question 3 था उसका opposite, इसमें हमको सबसे जो छोटा है उसको सर्कल करना है, और smallest की साइन क्या हुई? less than. Okay, so moving on to the first question. A 333, then 111 and 444. अब स्टार्टिंग फ्रॉम हंड्रेड्स प्लेस, रिमेम्बर हंड्रेड्स की प्लेस पर देखना है, पर कौन सा नंबर देखना है? जो सबसे छोटा है। डोंट डू द मिस्टेक कि 100 की प्लेस पर कंपेयर किया और जो सबसे बड़ा है उसको सर्कल कर दिया, वो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए है, स्मॉलेस्ट पे उसका उल्टा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हंड्रेड्स प्लेस। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो इन तीनों में से कौन सा सबसे छोटा है? 3 छोटा है? नो। 4 छोटा है? नो। तो 1 छोटा है इन दोनों से? यस। सो ये कौन सा नंबर है? 111। इट मीन्स 111 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसको आप सर्कल करोगे, राइट? सिमिलरली मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर बी। 289, 312 and 134. Let's start from hundreds place. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो इन तीनों में से कौन सा सबसे छोटा हुआ? 2, नो, 3, नो, तो 1। Yes. So what does it indicate? It indicates कि 134 सबसे छोटा नंबर है, right? Similarly, C 125, 400, 208. Okay. Now इन तीनों में से कौन सा छोटा है? Compare from hundreds place. यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2. Very obvious. 1 नंबर सबसे छोटा है, तो ये क्या हुआ? It will be the smallest digit. Got it, children? So this is the way how you are supposed to do your circling of greatest and smallest digit. इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं, but that we are going to do and we are going to learn in our next lecture.
Right, children? So this is the end of our lecture. Today we have learned ordering of numbers about greatest among all and smallest among all. And now it's the time for some homework. Okay, so the homework for the day is, मैंने जो भी सम्स क्वेश्चन पे किए हैं, उसमें जो भी बोर्ड पर किए हैं, उसमें जो भी बाकी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4. इन चारों में जितने सम्स बाकी है वो सब आपको होमवर्क में करने हैं और वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही करने हैं. ठीक है? एंड इवन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.7. इतना आपको होमवर्क में करना है. 3.7 में क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं है. इट्स जस्ट कंप्लीटिंग द ग्रिड. ओके, इट इज जस्ट कंप्लीटिंग द ग्रिड. जैसे आपने 100 से 200 एंड सो ऑन अपने ग्रिड में आंसर्स लिखे हैं, द सेम वे यू हैव टू कंप्लीट द ग्रिड इन एक्सरसाइज 3.7. So आज का होमवर्क एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 and exercise 3.7 question number 1. Fine, children. So this is the end of our meeting and this is the end of our session, and hope you enjoyed the session, and we'll meet soon again. Bye.